सब धीरे धीरे ऊपर बढ़े हैं। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे, जब सरकार को डिफेंड करते रहे, और आज उस मंच पर आसीन हैं जहां दोनों पक्षों को सुनकर और निर्णय करना होता है। ऐसा निर्णय कसौटी से नपा हुआ होता है, सोने की कसौटी से। ऐसा निर्णय 24 कैरेट होता है। आदरणीय मुकेश पांडे जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं भोपाल में आईजी था, पांडे जी राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में थे। मुझे नहीं मालूम था इनका पद क्या है, लेकिन हर काम यही करते थे। बाद में मालूम पड़ा कि पांडे जी बहुत विद्वान हैं और प्रो वाइस चांसलर हैं, लेकिन एक काम तो आपका एक कलर कॉम्बिनेशन है ना तिरंगे का, पांडे जी इसमें भी अपना दिमाग देते हैं कि इस हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पे राष्ट्रीय तिरंगे का कलर होना चाहिए सामने। मैं बचपन में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मैं महोबा का रहने वाला हूँ, सबसे अच्छी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा इसमें एडमिशन ले लो। महोबा से पढ़ोगे? तो मैंने कहा नहीं, बहुत ख़राब यूनिवर्सिटी है, मैं कतई नहीं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी नहीं। ईश्वर की देन थी, महोबा ताल तलैयों का शहर है। ईश्वर मुझे गंगा के किनारे BHU ले गया और मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई। पांडे जी जब भोपाल में थे, इन्होंने नेक का A ग्रेड कराया। मैं नहीं जानता था क्या होता, बाद में DP सिंह साहब से एक बार में मिला, वो बताए आपके यहाँ A ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। वो नेक के अध्यक्ष थे DP सिंह साहब, वो भी मेरे मित्र थे। यहाँ आया तो A++। आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो आपने फिल्म और बॉल बनाई जिस तरीके से। अब अगर मैं बच्चा होता और मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने बुंदेलखंड भेजते, मैं खुशी खुशी चला आता। आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह, विनय कुमार सिंह जी, प्रमोद कुमार जी, राज बहादुर जी, विनोद कुमार जी, आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। एक तो जो हमारे मंचस्थ लोग हैं उनके साथ ही, एक आपके सामने एक A++ यूनिवर्सिटी के इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेशन के अवसर पर आई एम फीलिंग एनलाइटेड, आई एम फीलिंग डिलाइटेड। इट्स प्रिविलेज to join the celebration of Constitution Day that reminds me of the foundation on which our nation stands. The Indian Constitution, as Madam has said, was adopted on this day. But it is just not a legal document. It's a vision of our architects, its founders. It gives us some rights, right to live with dignity, but at the same time, it gives us duties. We have to make a greater and better and stronger nation together. The main architect of our Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, once he had said, just don't be contented by having political democracy. We have to make it a social democracy. We have to convert the political democracy to social democracy. I have studied astrology, mythology. As per UNESCO, Sanskrit is the oldest language in the world, and Rigveda is the oldest Granth in the world.
If I say today that Constitution is the best legal document, Indian Constitution is the best legal document in the world, I would not do it. It's a dynamic document. It keeps changing. As law student, I need not to tell you or teach you that law is made in three ways. First, by traditions. Second, by lawmakers. And third, by Honorable High Court and Supreme Court rulings. Our Constitution is dynamic. It has changed time and again through traditions, through lawmakers, and through judicial pronouncements. As a former police officer, I have seen the Constitution in action, guiding the justice, protecting the freedom, and ensuring the fairness. But, ladies and gentlemen, power lies in you, in people of this country. I and you, each of us has a role in making the ideals of justice, unity and equity and fraternity a reality. The vision enshrined in the Constitution, we have to make it a reality. I urge all of you to think about it. Think how you can make your country stronger and better. What you can contribute by helping someone who is in need, by standing up for truth, or working hard to achieve your own dreams. Every bit counts. If you become a Supreme Court Justice, you are contributing to the nation, to a stronger nation. You aspire for that. Our ex-President APJ Abdul Kalam always said, think big. And you are the united mind. We have done whatever we could do. But you have to do a lot. I'll tell you only one thing. Whenever you have a problem, I as police officer had a lot of problems. You turn the pages of your Constitution, Constitution of India, and its related rulings. You will get the solution. That is why I have said this is the best written legal document in the world. Let us honor our Constitution by living its values every day. Together, we can make India a better and stronger nation. Thank you very much. Thank you for the opportunity. प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, वाइस चांसलर, जिनकी अगुवाई में इस विश्वविद्यालय को A++ का मार्किंग मिला है, उनकी कर्मठता अभी मंच पर भी देखने को मिल रही है कि वो कोई भी समय गंवाना नहीं चाहते थे विश्वविद्यालय के काम के लिए। जब भी मौका मिल रहा है, विश्वविद्यालय का हर काम समय से निपट जाए इसकी चिंता करते हैं। ऐसा करके इस विश्वविद्यालय को उन्होंने ऐसी मानक उपलब्धियां दिलाई हैं। ईश्वर से कामना करता हूँ ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आगे निरंतर इसी गति से और ऐसे ही कर्मठ लोगों की सेवा समर्पण भाव से आगे बढ़ता रहे। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों को आगे नई उन्नति प्रदान करने का अवसर प्रदान करता रहे। मैं सभी को आज अपने भारतीय संविधान के स्वीकार अंगीकृत करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देता हूँ। वाइस चांसलर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर यहाँ आकर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए
आमंत्रित किया। संविधान एडॉप्ट करते समय हमने जो संप्रभुता है ये किसी राज्य सत्ता को नहीं दी है। ये हमारे भारत के लोग, हम भारत के लोग वही संप्रभु हैं। इस भावना से इस संविधान का अंगीकरण हुआ है। उसी भावना से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पूरे संविधान की रचना में अपना योगदान दिया है। और सारी संविधान सभा के उन मनीषियों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर और विजनरी संविधान हमारे देश को दिया है। और समानता ये हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हमारा व्यवहार कैसा हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है भ्रातृत्व का। अपने भाई भाई के प्रति, अपना सारे हिंदुस्तानी सहोदर है, सारे भाई है, सारे देश के लोगों को अपना भ्रातृत्व परिवार के समझ के ऐसा व्यवहार हमारा जब होगा तब हमारे संविधान में समानता भी आएगी, स्वतंत्रता भी आएगी और आगे विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। संविधान सभा में मैं अपने सारे लॉ स्टूडेंट्स होंगे, सारे प्रोफेसर्स होंगे, सबसे संविधान को समझना है और उससे भी ज़्यादा अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब को समझना है तो उनका संविधान सभा में दिया हुआ आखिरी भाषण वो सबको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है, उसको पढ़ेंगे तो बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब के विचार क्या थे, उसको समझने में बहुत आसानी होगी। बाबा साहब का जो विषय था कि उन्होंने कहा कि हम अगर क्या अभी आज की डेट जब संविधान एडॉप्ट हो रहा था तो उनसे चिंता थी उनकी, क्या भारत हमारा अभी भी एक राष्ट्र है। उनकी चिंता थी हम अभी एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुए, हमको विकास करना है। और विकास के लिए उन्होंने सबसे जो एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा थी उसको उन्होंने चिंता जताई है कि जो हमारा जातियां हैं, विभिन्न जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, उस पर उनकी विशेष चिंता थी। और उन्होंने कहा जब तक हम जाति से ऊपर उठकर भ्रातृत्व के भाव तक नहीं पहुंचते हैं, सबको एक समान नहीं मानते हैं, तब तक हम अपने संविधान को एक भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं कर सकते। ऐसा उनका मानना है। उनके शब्दों में मैं कहता हूँ जो राष्ट्र के लक्ष्य के लिए उन्होंने कहा है, the realization of this goal is going to be far more difficult than it has been in the United States of America. In India, there are castes. The castes are anti-national in the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy, antipathy among castes. We must overcome all those difficulties if we wish to become a nation in reality. हम सबको ये चिंता करनी होगी हम कास्ट सिस्टम से कैसे बाहर निकले। कास्ट सिस्टम के बारे में मेरा अपना विचार है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं, वो आपके कर्म के आधार पर सारी व्यवस्थाएं थी और कर्म के आधार पर आज भी बड़ी व्यवस्थाएं वैसे ही चल रही हैं। पहले भी बड़े बड़े संत जो हुए, आज जो जिनको हम अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वहां से भी बड़े पूज्य संत हुए हैं जिनको सर्व समाज में वैसे ही उनका सम्मान किया है जैसे अन्य समाज से अन्य वर्गों से आए हुए संत पुरुष को किया है। हमारे समाज में पहले पलायन नहीं होता था। जितनी भी जातियां आज हैं, सब जातियों का अगर हम गहराई से अध्ययन करें, वो किसी न उसके व्यवसाय को प्रदर्शित करती है। कोई भी जाति उसके जन्म को प्रदर्शित नहीं करती, उसके व्यवसाय को प्रदर्शित करती है। आप पढ़ाई को लीजिए,
बढ़ई के रहेगा तो बढ़ई उसका जो लकड़ी का काम करने वाला, लोहार लोहे का काम करने वाला, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ये सारे व्यवसायिक पहचान थी आपकी, जिसको हमने जाति के रूप में एडॉप्ट कर लिया। उसका कारण था पहले समाज में पलायन नहीं था, गांव के लोग गांव में रहते थे और एक पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यवसाय को अपनाते रहते थे। उस नाते से वो हमारी व्यवसायिक पहचान बनी रही, इसीलिए उसको हमने आज उसको जाति के रूप में पहचानना शुरू किया। छुआछूत का भी विषय आता है। छुआछूत वाले विषय में मैं कहूंगा, छुआछूत आपकी जो आप काम कर रहे थे उसकी वजह से थी और उस काम को छोड़ने की आपको आजादी थी। और आज भी समाज में जो छुआछूत थोड़ा बहुत है वो आपके काम पर डिपेंड करती है, आप क्या काम कर रहे हैं। अपने घर में भी अगर आप या गांव में रहने वाले हैं तो गांव में कभी नाली साफ कर रहे होंगे तो अपने घर के लोगों को भी नहीं छुएंगे आप। तो जो व्यवसाय था उससे आपकी छुआछूत थी, इसके अलावा छुआछूत का और कोई कारण नहीं था, आपकी जन्म से नहीं था। लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यवसाय को अपनाते रहने से उसको आगे एडॉप्ट किया गया। अब जब से शिक्षा उपलब्ध हुई, एक सामाजिक माहौल अच्छा बना है, लोगों ने पलायन शुरू किया है। पलायन शुरू किया, हमने व्यवसाय तो अपना बदल लिया, लेकिन अपनी जो व्यवसायिक पहचान थी उसको हम नहीं बदल रहे। समस्या वहां पर है। जिस दिन हम अपनी व्यवसाय के साथ अपनी पहचान भी बदलना शुरू कर देंगे, हमारा जाति की समस्या जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं उससे अपनी पहचान जताइए, ना कि आप कहाँ पैदा हुए थे उससे अपनी पहचान बताएंगे, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब मैं आज के न्यायपालिका से संबंधित विषय के बारे में आता हूं। न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ी और कानून लिटिगेशन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। नारद स्मृति में एक श्लोक है, धर्मय कथाना पुरुषास्त दासन सत्यवादिन तदान व्यवहारो भूल द्वेषो नापि मत्सरः नस्ते धर्मे मनुष्याणाम व्यवहारा प्रवर्तते दृष्टा च व्यवहाराणाम राजा दंडधर स्मृता। जब सभी लोग धर्म का पालन करने वाले, धर्म का पालन आज की स्थिति में हम कानून का पालन करें, अगर सभी लोग अपने अपने कानून का, अपने धर्म का, अपनी ड्यूटीज का पालन करने लगे तो हमें से किसी भी न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यक्तित्व में सरल हुआ है, लोग अपने अपने धर्म, अपनी अपनी ड्यूटी से पदच्युत हुए हैं, उसकी वजह से न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है और कानून की आवश्यकता पड़ती है, कानूनों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पूरा जुडिशियल सिस्टम खड़ा होता है। When people do not perform their duties which were set up by dharma, that is law, when he fails to perform duty, the need for a law system arises, for which effective judicial system is required. Initially, judicial function was being performed by the kings. Gradually, the said judicial function was delegated by the kings to their law secretaries, and who were acting as like judges. In the ancient times, the judicial remedy was available at the people's door, at their own places. They were not required to move here and there seeking justice. Panchayats in each and every village, and also in each and every communities as well as used to perform the judicial functions, and the people used to abide the commands for such judicial determination by panchayat due to the fear of social sanction which were being imposed by such panchayats.
Gradually, the judicial system has developed, and we have inherited the judicial system as is available today from the Britishers. We are following the same judicial system. However, in the present day, the judicial system has become very tiresome, lengthy, and expensive, where a common man feels deprived of justice many times. Judicial function is a sovereign function which is being performed by the judiciary as a whole in the country. Starting from Gram Nyayalaya, Tehsil courts, district courts, high courts, and Supreme Court of India. The main challenge before the judiciary is huge and humongous pendency of cases before the courts at all levels. As per the records available with the National Judicial Data Grid, maintained by the Ministry of Law and Justice, as on today, more than 450 crores cases are pending in courts. Out of these, around 335 crores are the criminal cases, and the rest are the civil cases. As of today, there are 25 high courts. Total sanctioned posts are 1,114. More than 350 vacant posts are still there. In our Allahabad High Court, we have 160 sanctioned the strength of the judges, and we are working on the 80 judges. So that meaning thereby we are working at the 50% strength. That gives me right, and this strength was calculated more than 10 years, 15 years back to cope up the daily filing of the yearly filing of the cases and disposal. If 160 judges are there in the High Court, they can dispose of the cases which were to be filed. By the passing of the time, the number of filing of the cases has increased, and the strength is still there. And we are still working on the 50%. That is why the pendency of cases is increasing day by day. In the year 1987, the Law Commission had recommended the Indian judge population ratio. Recommended that the Indian judge population ratio to be increased to 107 judges, which was at that point of time only 10.5 judges per million. Today, this ratio has increased little bit by 15.4 judges per million. It was expected in 87 that at least there should be 50 judges per million by 1992, but we have not been able to achieve that target. In the joint conference held with Conference of the Chief Ministers and the Chief Justices held in 2012, the participants had decided to double the strength of the Indian judiciary by that time, so that it can be increased to 30 judges per million. However, that has not yet been achieved. As compared to the other countries, like in Australia, there are 58 judges per million. In Canada, there are 75 judges per million population. And UK, 100 judges per million, and USA, 130 judges per million. The judges also involves the governor and the chief minister of the state. The opinion of the Supreme Court Collegium for appointment in the High Court and the Chief Justice, and the two senior most judges. It is only when the proposal is routed to the Chief Justice of India, then the President can appoint a judge in the High Court and the Supreme Court. The collegium system has been introduced by the second judge's case in the name of independence of judiciary. However, by adopting that principle of independence of judiciary, though the independence of the Supreme Court and the apex judiciary has been maintained, however,
the independence of the state judiciary has been widely compromised. Justice J.S. Verma, who had delivered the majority judgment in the second judge's case, has himself criticized the working of the collegium system and had found that what is happening today was not expected by him while delivering the judgment. The working of the collegium system has been condemned mostly on the ground of non-inclusion of common men and appointment of judges from the families and relatives of the judges in most of the occasions, and common man had very less opportunity of entry in the higher judiciary. There is no mechanism. There is no mechanism where the people in general can apply for the appointment of higher judiciary or can come to the zone of consideration. It is sweet will of the collegium members whom they can recommend. Of course, some objective criteria has already been fixed by the appointment of judges. Non-fulfillment of vacancies or not recommending the vacant post is an abuse, and an excuse has been given by the collegium members in the high courts, which is the trigger point of appointment of judges in the higher judiciary, that they do not find good people of integrity and capability to be appointed as judges. According to my personal opinion, not recommending the names of appointment of judges in the higher judiciary despite there being a huge vacancy is a sin to the constitution and the society. Solution to this great problem of not recommending persons for appointment in the higher judiciary despite there being vacancy lies in the amendment in the memorandum of procedure by adding just one line. Unless the Chief Justice and the other collegium members of the High Court did not recommend the entire vacant posts as well as the vacancies to occur in the next 6 months, they shall not be considered for further elevation to the apex court or the Chief Justice of other High Courts. This line is added in the standard of procedure. There will be no unrecommended vacancy at all. The moment it is added in the standard of procedure, no collegium member will leave any vacancy unrecommended during his tenure. Ultimately, we will have to choose the people from the available lot. We can't withhold the recommendation for appointment of higher judiciary, and we cannot withhold the vacancy in the name of reasons that good people are not available. We have to choose the available best at a given point of time. The Supreme Court, in the recent judgment delivered in 2021, has recommended that these 6 months anticipated vacancies are also required to be recommended. In the judgment of Lok Prahari, implementation of Article 224A has been considered, and it has been recommended by the apex court that ad hoc judges can also be appointed on the need basis. However, for appointment of ad hoc judges, the condition imposed by the apex court is at least there should be recommendation for at least 80% of the vacancies. And very painfully I say that this 80% of recommendation in the high courts has not been achieved by various high courts. Therefore, there is no question of appointment of ad hoc judges. In my personal opinion, for making the system of appointment of judges in the higher judiciary more inclusive, it would be necessary to have at least some mechanism that people who are willing to be appointed as high court judges can apply, and their application can be scrutinized and shortlisted by setting up an objective criteria for the same. Therefore, thereafter, after scrutinizing the people who are willing to be appointed can come to the zone of consideration by the collegium members. अभी तो ये होता है कि भाई किसी को पता ही नहीं किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है. The people of the common man coming first generation lawyers, they don't get any chance to be appointed. That has to be some mechanism is required to be developed. पूरे जजेज अपॉइंटमेंट के सिस्टम में जुडिशरी की तरफ से, सरकार की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से
कहीं पर भी कोई विलिंगनेस भी नहीं है। उसका कारण जिस दिन जुडिशरी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, then the executive will have some problems. The weak and ineffective judiciary is a boon for the executive. Therefore, they act arbitrarily, which gives rise to corruption, and common man loses faith in the entire system. We cannot overrule the corruption in the judiciary as well, at some extent, but to the large extent, the people in the judiciary are honest. That is why the common man has faith in the judicial system. With regard to faith in the judicial system, I will just give two examples by taking lead from Mani Serenji. We have dealt with two cases. In one of the cases, the police station, which was having the allotted area 4,000 square meters, was occupying 10,000 square meters. Of course, this 6,000 square meter land was of some private persons. That was forcibly, without any acquisition, was taken over by the police station. One of the person filed the writ petition. With the able guidance of the senior judges, by calling the responses from the state, and by appointing a team of revenue authorities, we are able to get the area demarcated of the police station. और उससे बड़ी बात क्या थी, जब एरिया तो डिमार्केट हो गया, then the affidavit was filed, the private persons are not coming forward to take the possession. Then we directed that you build your boundary within 4,000 square meters. Only then the other people जिसकी जमीन है वो आके ले लेगा. So that was the outreach of the executive towards the general public, and they were not having no hope. अगर उन व्यक्तियों को सिविल सूट फाइल करना पड़ता तो शायद वो अपने जीवन में उस जमीन को नहीं पा पाते, जो एक सिंपल रिट पिटीशन फाइल करने से और एक जुडिशियल एक्टिव कॉन्शियस माइंड ने उसको शायद 2-4 महीने लगे होंगे, उन लोगों की जमीन खाली हो गई। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, वो भी पुलिस स्टेशन का ही। पुलिस स्टेशन के बगल में एक जमीन थी, तो पुलिस स्टेशन वालों ने उन्होंने क्या किया, पुलिस आवास बनवा दिया उसको। किसी की प्राइवेट गुमदरी लैंड है, उसमें पुलिस आवास बन गया, पुलिस वाले रह गए, 10 साल हो गए। 10 साल बाद कोई एसएचओ रहा होगा, कोई आया होगा, उससे उसका कोई कोलिजन रहा होगा या कुछ सिंपैथी रही होगी। अल्टीमेटली ही वाज एबल टू गेट दी आवास वैकेटेड। वैकेट करने के बाद उसने क्या किया, कुछ प्रीमाइसेस को डिमोलिश कर दिया, बुलडोजर लगा के, जेसीबी वगैरह लगा के गिरा दिया। गिराने के बाद जिस व्यक्ति की जमीन है, जिस पर इलीगल ऑक्यूपेशन पुलिस वालों ने किया हुआ था, उसके खिलाफ पब्लिक प्रीमाइसेस डैमेज एक्ट में उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चालू हो गया। वो उसने रिट फाइल किया, आया, पुलिस वाले आए, उसे पूछा गया भाई आपका राइट क्या था। उसके बाद जमीन तो खाली हो ही गई थी। For 10 years, use and occupation charges were also awarded to that person by the court. न्यायपालिका नहीं होती तो क्या होता, क्या हो सकता है, ये छोटे से उदाहरण है। कितने लोग सफर कर रहे हैं। पेंडेंसी की बात हो रही थी, तो पेंडेंसी का एक विषय में I was surprised when I joined the High Court. Criminal appeals are pending in the High Court since 1981-82. We are deciding the appeals of 81-82. More than 50 years have passed.
जब 81 में अपील फाइल होगी उससे 5-7 साल पहले का मुकदमा होगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चला हो। 50 साल पहले 55 साल पहले किसी ने अपराध किया होगा, उसकी अपील फाइल है, उसका फेट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दी मैन पावर इन जुडिशरी। इसी तरह से कंसोलिडेशन के लैंड कंसोलिडेशन चकबंदी के मुकदमे वो भी 81-82 से रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके पहले नीचे से मुकदमे चले होंगे 4-5 साल पहले से। तो बड़ी भयावह स्थिति है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, लेकिन बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि इसके प्रति सरकारों में, जुडिशरी में कोई उतनी बड़ी संवेदना नहीं है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। मेरा कहना है जब तक लोग नहीं होंगे इस व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट ऑल लेवल्स इज प्री-कंडीशन फॉर डीलिंग विद द ह्यूज पेंडेंसी इन द कोर्ट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों से क्रिमिनल अपील नहीं डिसाइड होने की वजह से उन्होंने नए डायरेक्शंस देने शुरू कर दिए। भाई किसी की 10 साल से ज्यादा अपील पेंडिंग है तो उसको जमानत दे दीजिए। ये ठीक है, एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ठीक है कि भाई 10 साल हो गए, मेरी अपील नहीं सुनी गई, मुझे जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन उसका क्या जिसकी जान गई थी? विक्टिम की तरफ से अगर सोचते हैं कि वो तो 10 साल बाद बाहर घूम रहा है और उसको प्रॉपर सजा नहीं मिल पा रही, उसकी अपील पेंडिंग। जुडिशियल इट्स अ एक्सेप्टेंस, मेरा कहना ये है, दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द फेलियर ऑफ जुडिशियल सिस्टम बाय द एपेक्स कोर्ट एज वेल। एक और विषय है जो जुडिशरी में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज है। मैं हाथरस जिले का प्रशासनिक जज था, वहां पर वादकारियों की जो बात कर रहा हूं, उनकी क्या व्यवस्था है। जजेस के बैठने के लिए प्रॉपर स्थान नहीं है, 2-2 जजेस एक चैम्बर शेयर करते हैं। जजेस के लिए टॉयलेट उपलब्ध नहीं है, महिला जजेस के लिए टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। ऐसे, लेकिन फॉर्चुनेटली एक खुशी की बात भी है कि उसी हाथरस जिले में एक मॉडल कोर्ट कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। उसके हिसाब से जो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नए कोर्ट्स बनेंगे, जहां पर भी वो 50 एकड़ की जगह में बनेंगे। हाथरस में वो बन गया है, बाउंड्री बन गई है उसकी 50 एकड़ में, और बहुत जल्द 2-4 साल में एक नया मॉडल कोर्ट बनके तैयार होगा जो पुराने कोर्ट से बहुत बहुत सुंदर भव्य होगा, ताकि वादकारी को भी लगे कि मैं न्याय पाने आया हूँ, सही जगह आया हूँ। अभी हाथरस की कोर्ट की स्थिति यह है कि वादकारी जाता है तो उसको लगता है जज को अपने बैठने का स्थान तो है नहीं, मेरा क्या करेगा। अगला विषय जो आता है न्यायपालिका के समझ, वो आता है फ्रीक्वेंट एडजमेंट्स, स्ट्राइक्स बाय एडवोकेट्स। छोटी सी छोटी बात के लिए स्ट्राइक करने के लिए अधिवक्ता बंधु तैयार है। मेरा मानना है इस स्ट्राइक से शायद न तो किसी अधिवक्ता का हित होता है, न वादकारी का हित होता है, ना ही न्यायपालिका का नुकसान होता है, न्यायपालिका के ऊपर बर्डन और बढ़ता है। तो वकीलों से आग्रह है, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को समझते हुए बहुत ही विशिष्ट विषय हो, उसी स्थिति में हड़ताल की प्रक्रिया में जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे तो न्यायपालिका सुचारू रूप से काम कर पाएगी। अभी पिछले 10-20 सालों से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। पहले तो
होता था कि भाई किसी की जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तभी मुकदमा करता था। आज क्या है, आपने छोटे से छोटे विवाद के लिए मुकदमा दाखिल हो जाता है। पड़ोस में नाली यहाँ से नहीं बहना चाहिए, मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों डाला, बात झगड़ा इस बात का होता है और मुकदमा लिखाया जाता है कि मेरे घर के अंदर घुस आए और मेरी पत्नी का ब्लाउज फाड़ दिया। ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ये गलत है, समाज के लिए बहुत गलत है। पहले महिलाओं के प्रति अपराध होते भी थे तो नहीं लोग कहते थे, आज नहीं होते हैं उसके बाद भी लोग उसके मुकदमे लिखाए जाते हैं और इसके लिए हमारे मैकेनिज्म कुछ है नहीं। कानून में व्यवस्थाएं है, झूठा मुकदमा लिखाना है, उसके लिए लॉ कोर्ट्स में जाएंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे, लेकिन जुडिशियल सिस्टम इनइफेक्टिव होने की वजह से उस पर हम लोग काम नहीं कर सकते। यूके में एक व्यवस्था है कि आप कोई भी मुकदमा फाइल करते हो तो आपको सिक्योरिटी देनी होती है कि अगर आप मुकदमा हार गए और आपका मुकदमा झूठा पाया गया तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। वो डैमेजेस देने के लिए आपको सूट फाइल करते वक्त सिक्योरिटी देनी पड़ती है कोर्ट में। तो जब आप मुकदमा फाइल करते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं और बहुत सारे लोग जो सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं वो मुकदमे नहीं करते। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के खूबसूरत हरे भरे कैंपस में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। अवसर है हमारा संविधान दिवस का। इस अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम एवं संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का, जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज से हैं एवं डायरेक्टर जनरल एवं अन्य कई पदों पर अपने जीवन में कार्य किए और आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे रजिस्ट्रार कंट्रोल एग्जाम, डीन एकेडमिक एंड रिसर्च, लॉ डिपार्टमेंट के हेड, फाइनेंस ऑफिसर और इस सभागार में बैठे हुए विभिन्न विभागों के शिक्षकगण, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं आज जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कार्यशाला आयोजित की गई है, ऐसे मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, आपने माननीय न्यायमूर्ति जी को सुना जो आज का विषय था कि भारतीय संविधान है, उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर जब आपने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जुडिशरी में, न्यायपालिका में विभिन्न पदों पर कार्य किया, और वो कार्य करते हुए आपका जो ऑब्जर्वेशन था, जो प्रैक्टिकल नोटिंग थी, ऑब्जर्वेशन था, उसके तहत आपने विभिन्न प्रोविजंस को भी बताया, जो कि आज लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर बहुत अच्छा रहा। साथ ही जुडिशरी में चैलेंजेस क्या हैं, वो चैलेंजेस को आने वाले समय में किस प्रकार से हम एड्रेस करते हैं,
उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला। तो निश्चित ही माननीय न्यायमूर्ति जी एवं आज जो पूरे भारत की न्यायपालिका है, आज भारत को नई दिशा दे रही है और न्यायपालिका का ही रोल रहा है कि हमारा देश जब जब कुछ परेशानियों में या संकटों में रहा है तो न्यायपालिका ने तत्काल उस देश के भविष्य को देखते हुए, परिस्थितियों को कंसीडर करते हुए अपने सराहनीय निर्णय प्रदान किए। हमने डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी को सुना, जिन्होंने अपने पूरे पुलिस की जर्नी में, चाहे वो डीजी रहे हो, आईजी रहे हो, डीआईजी रहे हो, कमिश्नर रहे हो या अन्य किसी पदों पर कार्य करते हुए आपने जो अनुभव प्राप्त किया, उस हिसाब से आपने बताने का अपने प्रयास किया कि आज पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। यदि पुलिस प्रशासन को माइनस करें तो न्यायपालिका पूरी नहीं हो सकती और न्यायपालिका को माइनस करें तो पुलिस प्रशासन पूरा नहीं होगा। और आज बड़ा सुखद संयोग है कि आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस सभागार में भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज पुलिस के भी मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय न्यायमूर्ति जी उपस्थित पर हैं। आपका ताली बजाकर जहाँ तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आपने प्रसन्नता जाहिर की। निश्चित ही आप दोनों लोग कहीं ना कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े रहे। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आज जब हम 50वें वर्ष में प्रवेश किए हैं तो हम विभिन्न उपलब्धियों के साथ किए। विभिन्न उपलब्धियों में यदि राष्ट्रीय स्तर से देखा जाए तो हम लोगों के पास नेट की डबल प्लस है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 6 विश्वविद्यालय के पास है। आज हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का NIRF है, जिसकी 74th रैंकिंग है। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज के तहत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश में मात्र 6 विश्वविद्यालय हैं। पूरे भारत में माननीय न्यायमूर्ति जी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे भारत में मात्र 26 विश्वविद्यालय हैं जिनका की चयन PM कुशल मुहिम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया। निश्चित ही आप लोग चूंकि बुंदेलखंड के हैं, इतनी बड़ी एकेडमिक एंड नॉटवर्दी एकेडमिक अचीवमेंट्स के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र को, बुंदेलखंड के शिक्षकों को, बुंदेलखंड क्षेत्र की छात्र एवं छात्राओं को, यहाँ के समाज को एक गति प्रदान होगी, स्पीड भी मिलेगी और स्केल भी प्राप्त होगी। जहां तक संविधान की बात है कि आज बहुत गर्व के साथ हम मान सकते हैं कि 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हम जब तिथियों की बात करते हैं छात्र एवं छात्राओं के लिए है तो वो शब्दों में निकल जाती है, अंकों में निकल जाती है। हम ये मानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा ये संविधान का अंगीकृत किया गया है। बट हम अंक तो बोल देते ये नहीं देते, ठीक उससे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को मात्र 60 दिन बाद उस संविधान को लागू कर दिया गया। भारत एक पूर्ण गणराज्य बन गया। आज हम उससे पहले की बात करें, जब 15 अगस्त 1947 को हम जब आजाद हुए तो जैसा माननीय न्यायमूर्ति जी ने कहा, डीजी साहब ने भी कहा, जब हम आजाद हुए तो भारत देश चलेगा कैसे? करोड़ों की संख्या है, हम भारत को चलाएंगे कैसे? क्या कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे राज्य चलेंगे, कैसे देश चलेगा, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा? तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था। तो हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को।
कि जिन्होंने संविधान सभा में मुख्य भूमिका अदा करते हुए भारत को एक ऐसा पूरे वर्ल्ड का लीगल एक डॉक्यूमेंट दिया जिसके कारण आज भारत बहुत तेज गति से चल रहा है। हम यदि कल्पना करें छात्र एवं छात्राओं कि यदि आपके परिवार है या आपकी कोई फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है या आप भविष्य में कहीं काम करेंगे, तो यदि आपके पास लाइफ का एक रोड मैप नहीं है, आपके पास पढ़ाई का एक टाइम टेबल नहीं है, सुबह यदि आप उठते हैं तो आपकी दिनचर्या क्या रहेगी, आप नेगेटिव कामों में सुबह से जुड़ जाएंगे या पॉजिटिव कामों में जाएंगे, तो आप लाइफ में या पूरे दिन में जब आप जीरो पे आएंगे, खत्म होगा, तो आपको लगेगा कि आज के दिन में हमने कोई प्राप्त नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। प्राप्त करना एक अलग चीज है। कुछ लोग पॉजिटिव प्राप्त करते हैं, खुश होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव प्राप्त करते हैं, जिनका चेहरा बोलता है। तो आज हमारे पास ये संविधान है जो कि पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संविधान है। आज ये संविधान हमको याद दिलाता है हमारे मूल्यों को, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम है, हमारे अधिकारों को, हमारे कर्तव्यों को और उत्कृष्ट लोकतांत्रिक जो हमारे आदर्श हैं। जैसे डीजी साहब ने बोला कि आज अगर संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज का कहीं ना कहीं प्रोविजंस में सॉल्यूशन नजर आता है, तो हम ये मान सकते हैं कि आज हमारा ये संविधान एक पावन अभिव्यक्ति है। इसलिए हम ये आज कह रहे हैं, भारत सरकार भी कह रही है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। अब जब रोड मैप की बात की है, एक सिस्टम की बात की है, टाइम टेबल की बात की है, तो भारत की ये आत्मा है और भारत की आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है। यह आज हमारे भारत को और 140 करोड़ लोगों को आसानी प्रदान करता है, शक्ति भी प्रदान करता है और हमको गरिमा भी प्रदान करता है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रधानमंत्री करते हुए आज भी उनके द्वारा जो संविधान की रचना की गई, वो संविधान में उस समय आप सोचिए कि उन्होंने कितनी दूरदृष्टि और अपने विचारों से न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों पर रहते हुए इस संविधान का निर्माण किया। उसी संविधान पर चलते हुए आज भारत पूरे विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और आज भारत सरकार पुनः जंप कर रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ $1 ट्रिलियन। आज भारत की प्रगति देखकर निश्चित ही हमारे जो संविधान सभा के निर्माता रहे हैं उनको भी प्रसन्नता हो रही होगी कि बढ़ता हुआ भारत है, नया भारत है, दिव्य भारत है। भारत बहुत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा और हम जो ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करते हैं, बंधुत्व के ऊपर काम करते हैं, वो हमारा संविधान हमको सिखाता है। आज हमारा संविधान में कहीं ये भेदभाव नहीं है कि हम धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे को दूर रखें, सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। लॉ के स्टूडेंट्स हैं, माननीय न्यायमूर्ति जी भी यहाँ पर हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जब हम 75 वर्ष में न्यायपालिका के साथ, भारतीय संविधान के साथ जब प्रवेश किए हैं, तो आपने न्यायपालिका या माननीय जस्टिस या ऑनरेबल जस्टिस या जो मूर्ति रहती है उसमें कुछ परिवर्तन देखा है? देखा है, वेरी गुड। कितने लोगों ने देखा है? प्रश्न पूछे हैं? चलिए नहीं पूछते हैं, मालूम है, थैंक यू। तो जब हम 75 वर्ष में प्रवेश किए तो हम नया भारत, नए विचार, विकासशील भारत, विकसित भारत की कल्पना करते हैं। बहुत जल्दी 2047 में हम 100 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। समय के साथ परिवर्तन होता है, एडवांसमेंट होता है। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, तो आज न्यायपालिका भी समय के साथ कुछ अपग्रेड हुई है। उस न्याय की मूर्ति ने भी अपने हाथों से तलवार हटा दी और संविधान को धारण किया, आंखों में जो पट्टी थी वो भी हटा दी।
हाल ही में रिटायर्ड सीजीआई माननीय चंद्रचूड़ जी ने का मानना था कि न्याय की देवी के हाथ में तलवार और आंखों पर पट्टी क्यों? हाथों में तलवार और आंखों पर पट्टी क्यों? न्याय के मूल्य तलवार की औपनिवेशिक विरासत में नहीं बल्कि संविधान में निहित नागरिक अधिकार और कर्तव्य बोध की सुरक्षा में है। और यही संविधान दिवस का संदेश है और यही संविधान दिवस का महत्व है। आज भी माननीय न्यायमूर्ति और डीजी साहब ने कहा, जो हमें गर्व की अनुभूति करवाता है, हमें गौरव प्रदान करता है, जो संविधान का आदर्श वाक्य है, हम भारत के लोग। ये जो 3.5 शब्द हैं, पढ़ने में बड़े आसान लगते हैं। सबसे पहले है हम। जब आप किसी परिवार में रहते हैं तो आपके माँ बाप क्या बोलते हैं? हमारा परिवार। तो हम भारत के लोग, हम, हमारा देश भारत और हम भारत के 140 करोड़ लोग हैं। ये सब एहसास कराते हैं कि भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी में है, इसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृति है, जो सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह चीजें हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग भी बनाती हैं और बेहतर भी बनाती हैं। आज का दिन हमें अपने संविधान की महानता और रक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी समझने का स्मरण कराता है। और यही हमारी कोशिश है कि संविधान ही पूरे देश को आगे आने वाले समय में और अधिक मजबूती और संबल प्रदान करेगा। आज हम सभी लोगों ने माननीय न्यायमूर्ति जी एवं डीजी साहब की उपस्थिति में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार आज संविधान दिवस को भी यहाँ पर मनाया। इस संविधान दिवस पर हमने शपथ ली है कि इस संविधान दिवस पर हमें जीवन भर यह भी निर्णय करना चाहिए कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों और देश के कानून का पालन करते रहें। देश का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होता है, बल्कि संविधान निर्माताओं के सपनों का राष्ट्र निर्माण भी होता है। एक बार मैं पुनः बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय न्यायमूर्ति श्री गुप्ता साहब का, डीजी साहब का बहुत बहुत आभार है कि आपने अपनी अति व्यस्तताओं में से आज समय निकाला और इस संगोष्ठी में उपस्थित हुए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। ये 4 पंक्तियां पढ़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर धर्म, जाति, भाषा का मान, सबके सपनों का यह सम्मान, लोकतंत्र का है जो सुंदर श्रृंगार, वो संविधान ही है भारत का आधार। संविधान है भारत की शान, हर नागरिक का गर्वित प्राण, न्याय, स्वतंत्रता, समता का दीप, विविधता में एकता का अनमोल दीप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान एवं जय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Honored dignitaries, respected faculty and dear students, I would like to take this very enlightening program to our prize distribution ceremony for the winners of 3 days Sanskritik Samhita organized by Babu Jagjeevan Ram, Institute of Law, Bundelkhand University from 19th November to 21st November 2024. This ceremony is more than just an event for us. It is a recognition of the hard work and passion of our students. We thank you, sir, for gracing this ceremony by your honorable presence.